B1 and B2 batch that is not completed for B3 and B4. So we'll complete that first and then we'll proceed. Okay. Yes. So let me share the screen with you all. We'll proceed further in shortcut method. So in shortcut method, Ma'am, you are not audible. AX plus B that we have to discuss, but we have not completed. Ma'am, audible not ma'am to me. I was not audible. No ma'am. Ma'am, lag होता है, I think lag होता है. Okay, I'll just आता okay है? So ma'am. Yes ma'am, आता okay. Yeah, okay. I'll just repeat everything. So I was talking about in shortcut method we completed 3 types. For all we have completed this e raised to power ax. For b1 and b2 batch we have completed the function type sine and cos of ax plus b. In line with same cos hyperbolic and sine hyperbolic का भी हम कर सकते हैं. A little variation is there, but that we not completed for b1 b2 even. So once I complete sine and cos for B3 and B4, then we'll come to the sine hyperbolic and cos hyperbolic of AX plus B for all division. By that time, the next type will complete, which is this case 4. And case 4 is this one. F of x is represented in terms of certain polynomial function. Now we have noted here the polynomial function in this way, which is usually known to us. Any type of function, example you can consider here x square plus x plus 1, right? Or simply x raised to power 5, or ax plus b, a simple linear function, or x cube plus x plus 1, cubical polynomial in this way, and so on. So phi of d operated on y is equal to f of x. This standard linear differential equation, if we have given, in that case, f of x might be sometimes a polynomial function. And if it is so, then what we can do to find out the particular integral, that we have to see. So usually, how we noted the particular integral is this way. Yp is equal to 1 upon phi of d operated on f of x. Now, what we have to do here further, I'll just elaborate the theoretical steps here and we'll go to journal page to explain it little stringent. In this case, phi of d can be written in terms of 1 plus psi of d by taking the lowest degree term common from phi of d. What we have to do, phi of d से हमें ऐसी lowest degree term बाहर निकालनी है, so that I can write down phi of d in terms of 1 plus psi of d. Like here, 1 upon delta of d into 1 upon 1 plus sigma of d into f of x. Now let me give you example in this case. This is case 4 we are dealing. F of x is equal to polynomial function. Today is 2010-21. So I was about to give you example. Wait a minute. Yes. So let me write down the example here. Suppose I am having, this is x square plus 2d. I'll write down phi of b in this way only. D square plus 2d plus 3. So 1 upon phi of d, I can write down as 1 upon d square plus 2d plus 3.
Now from this phi of d, which is in the denominator, I have to take the lowest degree term common outside. Now what is the lowest degree term? D square 2d or 3? 3. 3. So 3. 3 from the denominator we are going to take outside. What will left? And I will reverse the term in writing mode. 1 plus 2d upon 3 plus D square d by 3. square upon 3. Am I correct? Yes, ma'am. So Yes, sir. now this can be written as Yes, ma'am. 1 upon 3 into 1 plus 2d upon 3 plus d square upon 3, the entire bracket raised to minus 1. Am I correct? Yes, ma'am. So what we have done, I have converted the 1 upon phi of d into this pattern. Any constant, here I'm writing down this is 1 upon 3, right? Into 1 plus, say, certain function of d raised to minus 1. Or मॅम परत लॅग होतोय. this kind of function, x plus Ma'am, y bracket raised to लॅग n. होत होतं. Sorry? लॅग होत मॅम होतं. परत लॅग होतोय. लॅग आय थिंक इंटरनेट इश्यू आहे ना. हा मॅम, तुमचं नेटवर्क इश्यू असेल. हा, कारण मला पण अनस्टेबल दाखवत आहे. विल ट्राय टू चेक Yes, इट आउट. ठीक आहे, ओके. 1 x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n, हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असेल. व्हॉट मॅम इज दिस? तुम्हाला रिपीट करायला लागेल मॅम थोडं वरती. काय करावं लागेल? रिपीट मॅम ते काहीच काय म्हणजे ऐकू झालं नाही आणि ओके ओके तुम्ही फंक्शन ऑफ डी चा इनवर्स त्याच्यानंतर नाही का ऐकवायला? डीच्या इनवर्स ओके. नंतर हा. फाईन फाईन. इथपर्यंत करायला सेकंड स्टेप. हा नाही मॅम, मॅम, थर्ड स्टेप पण झाल्या. थर्ड स्टेप Okay. थर्ड स्टेप पण झालं. Okay, so this entire round bracket I noted as capital X. So Okay. square bracket now can be written as 1 plus capital X bracket raised to minus 1. Is that clear? येस मॅम. Okay. Now I'm asking you whether you know the expansion of 1 upon 1 plus X or not. Now Yes, what ma'am. happens here? 1 plus Y bracket raised to N. This is your binomial expansion. And binomial expansion हमें पता है कैसे लिखते हैं. This is x raised to n plus or nc0 I must write down. nc1 x raised to n minus 1 plus and so on plus ncn x raised to x raised to 0 into y raised to n. लॅग झालं. I'm so sorry all. कनेक्शन खूप अनस्टेबल आहे आय गेस आज, त्यामुळे मध्येच डिस्कनेक्ट होत आहे. इज इट ऑडिबल नाव? येस मॅम. येस मॅम, येस मॅम. ठीक आहे. येस, तर मी सांगत होते बायनॉमियल एक्सपान्शन बद्दल. बायनॉमियल एक्सपान्शन सगळ्यांना माहिती आहे. ट्रू? येस येस मॅम, माहिती है. यस. सो अगर आपको टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम या उसका एक्सपांशन याद नहीं आ रहा है, you can use the binomial expansion to remember this part. So what is the expansion of this function? This is 1 nc0, this is x and this is your y, bracket raised to n की वैल्यू है -1. So this is 1 minus x माइनस x plus प्लस x square x raised to हाँ.
and so माइनस on. हाँ अल्टरनेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव टर्म्स एंड कांस्टेंट 1 को लेके x की सारी पावर्स. बहुत इजी है याद रखना, राइट? ये Yes. हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस केस के लिए. दूसरा फॉर्मूला है इट्स 1 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस Okay, till this step got it? मॅम परत लाग परत तुमचं हा राईट, झालेलं मी पाहिलं आता डिस्कनेक्ट होतंय सारखं ते. पण हे 2 फॉर्म्युले क्लिअर झाले? यस मॅम Yes, yes, yes. ठीक आहे. मग आता आपल्याला काय लक्षात ठेवायचंय, व्हेनेवर ऑन राईट हँड साइड पॉलिनॉमियल फंक्शन इज गिवन, व्हॉट आय हॅव टू डू इज आई हैव टू टेक द लोएस्ट डिग्री टर्म आउटसाइड. किससे? फाई ऑफ डी से. सो मैं फिर से एक बार लिखती हूँ, फाई ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज द पॉलिनॉमियल फंक्शन. इन दैट केस yc तो आप निकाल लोगे, इट्स वेरी इजी. yp फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 अपॉन फाई ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला यूज करना है. एंड ओवर हियर यू हैव टू फॉलो दिस रूल. इज इट करेक्ट? मॅम तुम्ही परत डिस्कनेक्ट झाले होते. नाही, परत डिस्कनेक्ट होतंय. काय प्रॉब्लेम होतोय माहिती मॅम नाही. एकदा तुम्ही लीव्ह करून परत जॉईन करायला ट्राय करा ना. ठीक आहे, चालेल. एकच मिनिट. मॅम आणि एकदा एअरप्लेन मोड पण ऑन करून बघा. कुठला मोड? एअरप्लेन मोड, एअरप्लेन मोड पण ऑन करून. ओके फाईन. म्हणजे कधी कधी वायफायचा प्रॉब्लेम. अच्छा ठीक आहे, चालेल. मी चेक करते एकदा. ओके, होपफुली आता नाही होणार. लेट अस चेक. ठीक आहे, हे समजलं? मॅम स्क्रीन मॅम स्क्रीन नाही विजिबल. स्क्रीन विजिबल नाही आहे. मॅम तुम्ही प्रेझेंट नाही केलं. प्रेझेंट नसेल.
केले में ओके आता होती है आता एकच झालं. मिनिट. अच्छा येस मॅम. Okay, I hope now this is visible येस मॅम. and audible also. येस मॅम. Okay, so I was trying to saying that that phi of d we have to concentrate to take lowest degree term outside. Now few more example here I'll give you. Suppose 1 upon d cube plus d operated on x square plus 1. This kind of term we are having. So now lowest degree term, what is here in phi of d? D. D cube or d? It's d. So I have to take d outside and it can be written as 1 plus d cube upon d. So that is d square operated on x square plus 1. So this can be written as 1 upon d into 1 plus d square bracket raised to minus 1 operated on x square plus 1. Now this expansion you can write down with the help of above mentioned formula for 1 plus b square ब्रैकेट रेज टू -1. सो ये वाला जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था वो यहाँ पर लिख सकते हैं. एंड देन विथ 1 अपॉन d यू कैन मल्टीप्लाई और फर्स्ट ऑपरेटिंग विथ दिस फैक्टर later on you can apply 1 upon d to the evaluated term which is this red round bracket, and 1 upon d as we have earlier seen it's integration. येस मॅम. सो जो टर्म यहाँ से इवेल्युएट होके आएगी उसका इंटीग्रेशन हम बाद में ले सकते हैं. सो यू आर हैविंग टू चॉइसेस टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर पार्ट. आइदर 1 अपॉन डी पहले अप्लाई करो बाद में ये अप्लाई करो, या फिर ये टर्म अप्लाई कर लो बाद में 1 अपॉन डी अप्लाई करो. एनीथिंग विल डू. एंड ऑन राइट हैंड साइड यू विल बी हैविंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस. जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक टर्म ली है, वैसे मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं. नाउ सेकंड ऑप्शन आई विल गिव यू. It's 1 upon 3d plus 4 operated on x cube plus x plus 1. क्यूबिक पॉलिनोमियल पर इस फैक्टर से हमें ऑपरेट करना है. नाउ व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म? 4. सो टेक 4 आउटसाइड. 1 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर? 3d अपॉन 1 plus 3d/4. करेक्ट. x cube plus x plus 1. And now 1 upon 4 as it is, this term I can write down 1 plus 3/4 into d bracket raised to -1 into x cube plus x plus 1. Again, this term you have to expand by using the formula 1 plus x bracket raised to -1. Over here, what is x? This is 3/4d. यहाँ पर x क्या था? This is d square. D square. Right? So whatever is your expansion over there, that x term you have to put up. कोएफिशिएंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना? Yeah, along with coefficient. Okay. Along with coefficient we have to apply that. Okay. Let us take one problem over here. Now जितने भी problems हम यहाँ पर try कर रहे हैं ना, that all may come in combination. So यहाँ पर मैं पहला problem आपको देती हूँ, या फिर ऊपर वाला प्रॉब्लम ही एक बार करते हैं. लेट अस टेक वन प्रॉब्लम. दिस इज d स्क्वायर यस दिस इज d क्यूब. हम लेते हैं d क्यूब प्लस 8 ऑपरेटेड ऑन y is equal to x raised to power 4 plus 2x plus 1. ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. नाउ y से आप निकाल सकते हो. यू कैन डू दिस प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, नो इश्यूज एट ऑल. yc is d cube plus 8 is equal to 0 is your auxiliary equation. Find out the roots. 3 roots यहाँ पर मिलेंगे. -8. 2 will be complex and 1 will be real. Real. -2 is real. Yes. -2. -2. -2. हाँ, rest of 2 factors and hence yc. ये आप निकालो. मीनवाइल I'll go for yp. अगर नहीं आता है तो yc भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाद में. It's 1 upon phi of d operated on f of x. So it's 1 upon d cube plus 8 operated on x raised to power 4 plus 2x plus 1.
हमने क्या डिसाइड किया था कि लोएस्ट डिग्री टर्म हम बाहर लेंगे, सो इट्स 8 आउटसाइड, इन ब्रैकेट इट विल रिमेन 1 प्लस d क्यूब अपॉन 8 operated on x raised to power 4 plus 2x plus 1. And now I will compare this term with 1 plus x bracket raised to minus 1. Okay. After comparing and simplifying, we'll get it's 1 upon 8, 1 plus d cube upon 8 bracket raised to minus 1, x raised to 4 plus 2x plus 1. Right? Now expand this. It's 1 upon 8 into 1 upon d cube by 8. ये हम 1 plus x bracket raised to minus 1 के साथ कंपेयर करेंगे. इसका एक्सपेंशन क्या है? 1 minus x plus x square minus x cube and so on. 4. Yes, ma'am. सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या और एक मैं टर्म लिखती हूँ. वेट प्लस x raised to power कैपिटल x raised to power 4 and so on. ब्रैकेट क्लोज. किस पर ऑपरेट हो रही है ये टर्म? x raised to power 4 plus 2x plus 1. ठीक है. अब यहाँ पर कैपिटल x की वैल्यू लिख देते हैं. दिस इज 1 upon 8 into 1 minus what is x? d cube by Compare with this. Capital X is D cube by d cube by 8. 8. Yes, d cube by 8 plus x square. So this is d raised to power 6 by 8. 64 minus x cube. So this is d raised to power 9 by 8 to the power 252 and so on. मैंने यहाँ पर x raised to 4 को पुटअप ही नहीं किया है. क्यों नहीं पुटअप किया है? Let us discuss. Now आपका फंक्शन क्या है? ये पूरा x raised to power 4 plus 2x plus 1 ये पॉलिनोमियल किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो? इसे इस पूरी इनफाइनाइट सम के साथ. ठीक है. अब इसे इनफाइनाइट सम के साथ तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा. सो व्हाट वी विल डू, हम टर्म बाय टर्म अप्लाई करेंगे. 1 ऑपरेटेड ऑन x raised to power 4 plus 2x plus 1. लेकिन 5 and 2. सॉरी 2 5 to 9. 5 and 2 8 चा क्यूब. हाँ सॉरी 5 1 2 यस. हाँ 64 into 8 ना. यस 5 and 2. 5 1 2 yes yeah that's right. Okay, I was talking about हाँ 1 multiplied by this. यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म में ऑपरेटर है. वो भी क्या है? d क्यूब. d क्यूब मीन्स थर्ड डेरिवेटिव. What is d cube? It is d cube by dx cube. Third derivative, d raised to power 6. This is d 6 by dx 6. d raised to 6 by dx raised to 6. Sixth derivative and so on. Is that right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now my question is, हमारे पास पॉलिनोमियल जो है ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? d से ऑपरेट करते हैं. d ऑपरेटेड ऑन x raised to power 4 plus 2x plus 1. क्या आएगा ये? 4 x cube plus 2 plus 2. Yes, ma'am. करेक्ट. सेकंड d स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं सेम चीज का, सेम फंक्शन का. Ma'am, ये क्या 12x आएगा? square. 12x square. करेक्ट. देन d क्यूब लेते हैं, मीन्स ये पार्ट. ये क्या आएगा? 24x. 24x. d raised to 4 क्या आएगा? 24. 24. d raised to 5. 0. 0 0 Zero. d raised to 6. 0. 0. d raised to 7. 0. Zero. सो आगे के सारे डेरिवेटिव 0 आएंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट. तो आपको शायद ये चीज पता होगी, हम किसी भी फंक्शन का f(x) का अगर nth डेरिवेटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये f(x) अगर पॉलिनोमियल है तो हमारा डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा इफ द डिग्री ऑफ f(x) इज इक्वल टू
ऑर्डर ऑफ द n डेरिवेटिव। order जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री एंड डेरिवेटिव की ऑर्डर सेम है, तो आपको क्या मिला? कांस्टेंट, yes ma'am राइट? एंड जैसे ही कांस्टेंट मिलता है आगे के डेरिवेटिव्स क्या बन रहे हैं? जीरो बन रहे हैं। 0 yes ma'am 0 यस तो हमें क्या करना है, हमें उतनी ही टर्म्स अप्लाई करनी है इन सारे इनफाइनाइट टर्म्स से जो इस पॉलिनोमियल पर अप्लाई करने के बाद मुझे नॉन जीरो टर्म्स दे। अगर जीरो टर्म्स दे रही है तो वो सारी इनफाइनाइट सम की टर्म्स में एक्सक्लूड कर सकती हूँ। गॉट माई पॉइंट? अब यहाँ से आगे डी की पावर तो हायर ही बनती जाएगी, लोअर कभी नहीं होगी। तो हमें अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है। सो हाउ आई विल अप्लाई? इट्स 1/8 1 multiplied by the polynomial x raised to 4 plus 2x plus 1 minus ऊपर सेकंड क्या है 1/8 into d cube operated on x raised to power 4x plus 2x plus 1. ठीक है, then d raised to 6 by 64 0 plus yeah. d raised to 6 by 64 operated on x raised to power 4 plus 2x plus 1 and plus and so on. यहाँ पर टर्म्स कुछ भी नहीं आएगी, सो आई कैन एक्सक्लूड ऑल दिस क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स जीरो आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने टास्क किया है ना यहाँ पर ये वाला, ये हम सजेस्ट कर रहा है कि d raised to 4 के आगे वाले सारे डेरिवेटिव्स हमारे गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो बन रहे हैं, राइट? तो ये भी सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पर जीरो मिलेगा। कौन सा? थर्ड टर्म का। This will be equal to 0. Alright, so 1/8 into x raised to 4 plus 2x plus 1 minus 1/8. अब मुझे बताओ कि थर्ड डेरिवेटिव इस पॉलिनोमियल का क्या है जो आपने ऊपर निकाल के रखा है? 24x 24x, right? 24x So ये आ जाएगा 24x. Now 8 3s are 24. So ये हमारा सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा 1/8 into x raised to 4 plus 2x plus 1 minus 3x and hence this is 1/8 into x raised to 4 minus x plus 1 and this is our answer. ये क्या है आपका yp. Alright, yc निकाला है किसी ने? स्क्रीन फ्रीज मैम प्लीज मैम हा स्क्रीन फ्रीज झाली आहे. एकच मिनिट, परत नेट गेलं का? ओके आता दिसतीये? येस मॅम. यस मैम ओके फाइन. yc निकाला है किसी ने? और shall I find out? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, what is it? C1 -2 दूसरा रूट 1 1 plus root 3i. 1 plus root 3i Root 3i. upon Oh, no, ma'am. Direct 1 minus root 3i. दूसरा root. okay, yes, okay, yes, and so yc is c1 e raised to power minus 2x plus यस मैम प्लस e raised to power e x raised to power x into c2 cos root 3 x plus c3 sin root 3 bx sin root 3 x. yes. So yes, so आपका फाइनल आंसर होगा yc plus yp. ठीक है, सो ये आंसर आपको लिखना है. Is that pattern is clear everyone? Yes ma'am. Shall I give you? Yes, ma'am. Okay, shall I give you one more problem? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, simply yp निकालो. Question number 2. Find yp of d raised to 4 plus d square plus 1 operated on y is equal to 53x square plus 17. सिर्फ yp निकालो इसका.
YC तो आप निकाल पाओगे. I just want YP. It's 1 upon pi of D operated on f of x. That is 1 upon this plus square plus 1 operated 50x square plus 17. It is just problem of 2-3 lines. So let us complete that first and then we'll proceed. I'll wait a couple of minutes until you complete, then we'll proceed. Done? Yes, ma'am. Yes, Okay, so what is the answer? अब यहाँ पर बाहर निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो 1 है. 1 को बाहर निकाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं सिर्फ दी गई टर्म को ऐसे लिख देती हूँ. ठीक है, तो इसे लिखा जाता है और एक तरीके से combining these two terms together. So it is 1 plus d square plus d raised to 4 bracket raised to minus 1 operated on 53x square plus 17. तो ये है आपका x, ये आपका x है. ठीक है, तो इसे एक्सपांड करते हैं. दिस इज 1 minus x plus x square and so on. तो अब टर्म्स कितनी चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे. किस पर बेस्ड होता है ये? 53x square minus 36. Minus 36, 9. Constant is not correct. Cross check it once. So my Minus problem is minus 89. हाँ minus 89 आता है. So this is x I'm replacing d square plus d raised to power 4 plus this is d square plus d raised to power 4 bracket square and so on. Now and so on ये वाली टर्म्स हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे. This is 17. Now keep practice to write down your first derivative, second derivative of all of these terms. So first derivative of 53x square plus 17. This is 106x. What is second derivative? 53. Ma'am, the answer is 53x square minus 106. 106. 36 नाही आता आहे. थांब बघूया आपण. 106 होणार ना सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. 106. D square is 106, right? And now let us apply with this. This is 1 operated on this term. This is 53x square plus 17 minus d square plus d raised to power 4. Rest of operated on 53x square plus 17. And now rest of terms we don't want. So I'll just conclude my terms here. Okay? Now this is 53x square plus 17 minus d square operated on 53x square plus 17.
अब आगे वाली टर्म्स मुझे क्यों नहीं चाहिए, इसका मैंने एक्सपेंशन किया तो d रेज टू 4, d रेज टू 6 एंड d रेज टू 8 की टर्म मिलेगी। तो हायर डेरिवेटिव्स तो हमारे जीरो है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ही कांस्टेंट मिल रहा है, तो थर्ड डेरिवेटिव से आगे सारी टर्म जीरो होंगी, तो हम ये वाली टर्म तो ले ही नहीं रहे। यहाँ से भी d रेज टू 4 की टर्म आएगी नहीं क्योंकि d रेज टू 4 ऑपरेटेड ऑन दिस टर्म विल गिव यू 0, ठीक है, तो ये सिर्फ ये वाली टर्म आएगी। सो अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल के रखा है, दिस इज माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 106, नोट डाउन हियर, राइट, एंड दिस इज 53x स्क्वायर, 16 में से 7 minus 9 89. Minus 89. माइनस एंड दिस इज 8, राइट, माइनस 89, तो ये सही है आंसर। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, यस, सो दिस इज अबाउट दिस केस 4। अब हमारे पास जो केस 5 है, हम केस 5 भी पढ़ने वाले हैं। आई गो टू दैट नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहाँ पर आप देख रहे हो तो मैंने फॉर्मूला भी लिख के रखा है एंड कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स भी इंक्लूडेड ओवर हियर। सो ये प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो कैसे आ रहा है। सो 2 प्रॉब्लम्स आर गिवन हियर एंड नाउ विल कम टू द नेक्स्ट केस, केस 5। अब केस 5 में आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है ये कहाँ से आ रहा है फंक्शन, phi of d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू f of x, द राइट हैंड साइड ऑफ आवर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये f of x अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के फॉर्म में है जहां पर एक फंक्शन कंपलसरी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड दूसरा फंक्शन है एनी फंक्शन ऑफ x। अब इस एनी फंक्शन ऑफ x में v क्या क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, v फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, v आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है। ऑलराइट, अदर देन दैट हम यहाँ पर कोई टाइप नहीं ले सकते v का। अगर यहाँ पर अदर फंक्शंस मींस रेस्ट ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे कि सेक, कोसेक, टैन, कॉट, उसके लिए मुझे अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। दिस शॉर्टकट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस। नेक्स्ट फंक्शन आपका हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके लिए भी मुझे अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो v एनी फंक्शन देके रखा है ना, यहाँ पर भी प्रिफरेबली restricted functions are polynomial functions, exponential functions, trigonometric sine and cos function and hyperbolic sine and cos function, ऐसे होंगे मैक्सिमम टाइम्स। रेयरली अदर फंक्शंस आ सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, वंस अगेन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट pi इज सिमिलर। यहाँ पर करना क्या है, अब ये थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। दिस एक्सपोनेंशियल term we are taking to the left hand side of 1 upon phi of d, means हम इसे एज अ कांस्टेंट जैसे हम ऑपरेटर के बाहर लेते हैं ना, उस सेंस में हम 1 upon phi of d से बाहर ले रहे हैं, बट 1 upon phi of d ऑपरेट हो रहा है e raised to power ax पर भी, इसलिए ये पूरा प्लेन वे में बाहर नहीं आएगा जैसे कांस्टेंट बाहर आता है। ये phi of d चेंजेस कैसे चेंजेस, phi of d नाउ कैन बी रिटन एज phi of d plus a ऑपरेटेड ऑन v। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको एक। मेरे पास है 1 upon d square plus d ऑपरेटेड ऑन e raised to power 2x into sin of x, ठीक है। तो ये ऑपरेट कैसे होगा, e raised to power 2x हम आउटसाइड ऑफ दिस ऑपरेटर ले रहे हैं लेकिन ऑपरेटर में चेंज हो रहा है, 1 upon d रिप्लेस हो जाएगा d plus a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, सो d plus 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी d रिप्लेस हो जाएगा d plus 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, नाउ ऑपरेटेड ऑन sin x। सो इस एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर लेने से हमारे ऑपरेटर में चेंजेस हो रहे हैं एंड नाउ changed operator we are applying on remaining function which is sin x here. Got it? Exactly हम कर क्या रहे हैं, हेलो एवरीवन? Yes, ma'am. यस, सो इस वे में हमें ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अलॉन्ग विद द पॉलिनोमियल टर्म। साइन का पार्ट
साइन एंड कॉस फंक्शन का पार्ट B3 B4 को नहीं हुआ है, तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी. Okay, let us check out. Phi of d operated on y is equal to f of x. आपका LD. तो ये आपका phi of d है. This is your function which is in the format of e raised to power ax into v. ठीक है. So यहाँ पर yc तो आप निकाल लोगे, तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. 1 phi of d operated on f of x. ये आ जाएगा इस सेंस में. ये आपका phi of d है. ये है आपका v, ये है आपका e raised to power ax. a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2. ठीक है. तो ये आपका रूल हम फॉलो करते हैं. तो चेंजेस कहाँ पर आएंगे? yp इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की टर्म हमने पहले ले ली. अब आपका जो ये 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 वाला phi of d है, 1/phi of d है, वो चेंज कैसे होगा? हर एक d को रिप्लेस कर दो d प्लस 2 से. सो d प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी प्लस 2 प्लस 3 ऑपरेटेड ऑन रिमेनिंग फंक्शन जो कि है एक्स क्यूब. नीचे आते हैं. अब ये पूरा पैटर्न पूरी टर्म सिंप्लीफाई करते हैं. e raised to power 2x एज इट इज, ये चेंज हो जाएगा 1/, इसका सिंप्लीफिकेशन में लिखती हूँ. दिस इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8, माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 3. अब यहाँ पर ये 4d माइनस 4d 0 बन जाएंगे. दिस इज 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 माइनस 1, तो बचेगा क्या? d स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे ये चेंज 1/phi of d किस पर ऑपरेट हो रहा है? एक्स क्यूब पर ऑपरेट हो रहा है. एंड जब ये हमें पॉलिनोमियल पर ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ये केस 5 सिंप्लीफाई करने के लिए. एंड जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाता है, यहाँ पर यूज करेंगे हम केस 4. ठीक है. तो लोएस्ट डिग्री टर्म बाहर निकाल दो. लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? ये 1, लेकिन ये माइनस साइन के साथ एसोसिएटेड है, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया. बचेगा क्या? 1 माइनस डी स्क्वायर. माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर 1 माइनस डी स्क्वायर बचेगा. अब इसे लिख दो ऐसे, माइनस e raised to power 2x इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब. अब इस टर्म का एक्सपांशन आपको पता है, इस फॉर्मूला के साथ लेना है जो यहाँ पर लेके रखा है. एंड नाउ ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब. एक्स क्यूब इस टर्म को आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स को, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर. सेकंड डेरिवेटिव 6x. थर्ड डेरिवेटिव 6 एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑनवर्ड्स सारे डेरिवेटिव्स 0. Am I clear? Okay, Yes, it's ma'am. almost 12:15. ये क्लियर हो गया? यहाँ पर लिखा भी है, देखो रीजन. ठीक है. एंड नाउ मुझे ये एक्सपांशन जो है ना, वो वहां तक ही लेना है जहां तक एक्स क्यूब की टर्म्स आफ्टर डेरिवेटिव कुछ नॉन जीरो वैल्यूज दे, जैसे कि ये और ये. ठीक है. लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है डी स्क्वायर, थर्ड टर्म है d raised to 4. आगे वाली सारी टर्म d के हायर पावर होंगे, तो d के हायर पावर x क्यूब पर ऑपरेट करने पर मुझे 0 वैल्यू देंगे, क्योंकि d raised to 4 खुद ही 0 वैल्यू दे रहा है. तो मेरी सिर्फ टर्म्स आएंगी ये, आगे की टर्म्स लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर. तो माइनस e raised to power 2x एज इट इज, एंड दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब. 1 into x cube as it is रहेगा. d square second derivative of x cube is 6x. तो हमारा yp क्या बनेगा? माइनस e raised to power 2x into x cube plus 6x. सो ये है आपका yp. ऊपर yc निकाल के रखा है, दोनों की एडिशन हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन. ऑलराइट. ओके, सो आई स्टॉप ओवर हियर. आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ये नहीं रहेगा. एंड रेस्ट ऑफ 2 types we will complete by next lecture. आज हम B3 and B4 बैच के साथ 4 बजे मिल रहे हैं फिर से, just for half hour. Okay, so let me stop over here. I'll quickly take your attendance and we'll stop. Roll number 1. एक ही मिनट. हाँ, ये जल्दी हो जाता है. यस, 2 1 3 4 5 एब्सेंट है. ओके,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 71, 72. All right. Just 5 is absent, rest of all present. Okay? Okay. We'll stop over here. We'll continue in next lecture. And today, B3, B4 batch will meet at 4 o'clock. Thank you, everyone.